So today we will discuss about relationship between solubility and the solubility product. Okay, so solubility we have seen. Okay, हमने देखा हुआ है last chapter में देखा हुआ है solutions में. Okay, so solubility product also we have seen yesterday's lecture. Okay, so the solubility of a compound, it is what the amount in grams that dissolve in particular volume. Okay, so solubility क्या होती है? Okay, solubility क्या होती है? How much gram okay, how much gram of solute that is dissolved in a particular liquid. Okay, किसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में जो सोलुबल हो रहा है प्रोडक्ट जो भी. ओके, तो यूनिट क्या है इसका? ग्राम पर लीटर. ओके, ग्राम पर लीटर इज आल्सो नोन एज ग्राम पर लीटर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? डेसीमीटर क्यूब से इंडिकेट करते हैं. मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत हो आप लोग. लीटर का कन्वर्जन किया है किसमें? डेसीमीटर क्यूब में किया हुआ है. ओके, सो नाउ मोलार सोल्युबिलिटी. ओके, विल राइट डाउन मोलार सोल्युबिलिटी. मोलार सोल्युबिलिटी. ओके, write down what is molar solubility and we will find out the relation between this. Okay, so molar solubility जो होती है molar, how many number of moles? Okay, molar solubility will be what? How many number of moles that are dissolved in particular quantity, that is liter. बराबर है, कितनी क्वांटिटी में? क्वांटिटी किस में लिया गया है? लीटर में लिया गया है. ओके, क्वांटिटी किस में लिया गया है? लीटर में लिया गया है. सो molar solubility. Okay, so which can be written as the solubility, which can be written as the ratio of solubility that is gram per liter. Okay, divided by molar mass, divided by molar mass, divided by molar mass. Okay, so molar mass किसमें रहेगा? Okay, molar mass in gram per mole. Okay, molar mass that will be gram per mole. Look at this once again. एक बार फिर से देखो इस इक्वेशन को. Molar solubility. We want to find out what is molar solubility. So molar solubility is what? How many number of moles that are present in particular volume. ओके, यूनिट देखो उसका क्या है? मोल्स पर लीटर. क्या है यूनिट उसका? मोल पर लीटर. ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे लीटर में. आप लोग इसको डेसीमीटर क्यूब में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, which is given by the solubility. Okay, which is given by solubility. Solubility क्या है? ग्राम पर लीटर में है. Okay, how much amount of the solute that is present in a particular volume. And molar mass calculated in terms of gram or kg. तो हमने किस में यहाँ पे लिया है? ग्राम में लिया है. पर मोल. ओके, तो ये देखो, इस यूनिट को थोड़ा बैलेंस करो, क्या हो जाएगा ये? ओके, दिस इज ग्राम पर लीटर. ओके, ग्राम पर लीटर है और ये हो जाएगा, नीचे आएगा ग्राम और ये मोल गया ऊपर में. बराबर है ना? ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया. क्या है? मोल पर लीटर. मोल पर लीटर इज व्हाट? दी मोलार सोल्युबिलिटी. समझ में आया? तो दिस इज व्हाट? दी मोलार सोल्युबिलिटी. So consider solubility equilibrium. एक इक्वेशन कंसीडर करो. हमने जो देखा है solubility equilibrium के लिए, consider this equation as px ay. Okay, px ay. If it is in a solid state and if it is splitting in its aqueous solution, like x times b y plus, okay, plus y times a x minus. Okay, y times a x minus. Okay, in their aqueous solution, यहाँ पे मैं लिखता हूँ aqueous solution and in their aqueous solution. तो हमें पता है हम solubility product कैसे लिखते हैं, इसका कैसे लिखते हैं solubility product, KSP कैसे लिखते हैं हम लोग? ये देखो कौन से आयन से? ये मॉलिक्यूल के आयन से. कौन से? B के. ओके, क्या है वो? By प्लस. कितना है कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट क्या है उसका? x है. वो कहाँ पे चला गया? पावर में चला गया. मैंने आपको बताया था. ओके, सिमिलरली दीज आर द आयंस. किसके आयन से? a के x माइनस आयन से. ओके, और उनका जो कोएफिशिएंट है आगे वो क्या है? y. वो कहाँ पे चला जाता है? पावर में चला जाता है. So in this way it is written. Okay, so if S is a molar solubility. Okay, so now we have introduced
यस इज अ मोलार सोल्युबिलिटी, यस यानी क्या है, मोलार सोल्युबिलिटी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ यस इज मोलार सोल्युबिलिटी, यस इज molar solubility of compound, the equilibrium concentration of the ions in the saturated solution, okay, it will be written as, इनके जो equilibrium concentration है मैं यहाँ पे लिखता हूँ equilibrium concentration, equilibrium concentration, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन किसका, डी वाई बी रेस टू वाई यानी क्या है, ये प्लस आयन से किसके, इस मॉलिक्यूल, ये वाला क्या है, ये आयन से नेगेटिव आयन किसके, इस, बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस, ओके, ये कितने टाइम से, x टाइम से, तो देखो हम लोग इसको लिखेंगे b रेस टू y प्लस आयंस को हम लोग लिखेंगे दैट इज x into s, what is x into s, okay, x is this coefficient multiplied by s, s the molar solubility, x is what, it is the, ये coefficient है ये वाला, okay, x multiplied by s, s is what, s is molar solubility, okay, molar solubility, okay, moles per liter, moles per liter, okay, similarly इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a raised to x minus that is equals to y, okay, y times, क्योंकि ये कितना है y times है, y times the molar solubility that is moles per liter। देखो एक बार फिर से चेक करो क्या लिखा है हम लोगों ने, वी आर लर्निंग अबाउट रिलेशन बिटवीन द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनमें क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। जरा मेरा आज आवाज़ थोड़ा सा हो सकता है कम आए, सो पार्डन मी बिकॉज थोड़ा सा गला बैठ गया, इसके लिए थोड़ा सा आवाज़ कम ही आएगा मेरा, ओके। सो मोलार सोल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर दैट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटी, ओके, सोल्युबिलिटी हमें पता है, सोल्युबिलिटी क्या होती है किसी चीज की, कितना उसमें सोल्यूट है, कितने ग्राम में इसका सोल्यूट है, जो किसी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, वॉल्यूम अभी इसमें हमने लीटर में रिप्रेजेंट किया है, ओके, हम लोग लीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज द मोलार मास, मोलार मास, मास दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ओके, ग्राम पर यूनिट मोल, एक मोल का, पर यूनिट मोल का कितना ग्राम मास है, मोलार मास, वो यहाँ पे ऐसे लिखा है, ओके। तो हमने क्या लिखा है, जो इक्वेशन लिखी है जनरल इक्वेशन, ओके, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन, किसी भी पैरामीटर को समझने के लिए हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखते हैं, ओके। तो जनरल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ a x एंड dy के टर्म में है, ओके। सो तो bx ay ये सॉलिड में है, ये इसका एक्वियस सॉल्यूशन में ये दो आयंस देता है, ओके, वी आर राइट नाउ स्टडीइंग अबाउट आयोनिक, ओके। सो आयंस ये वाला देता है आयंस, तो हमें पता है इनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, इनका इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, ये कोएफिशिएंट ऊपर में चला जाता है पावर में, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, डायरेक्टली वो उसका कंसंट्रेशन ले लेना है, इस आयन का कंसंट्रेशन ले लेना है, और उसमें आगे जो कोएफिशिएंट है वो कहां पे चला जाता है, पावर में चला जाता है। मैं बार-बार बोल रहा हूं बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, आयोनिक प्रोडक्ट में। सो Ksp is equals to d raised to y plus raised to x, x कहां से आया है, raised to x, बिकॉज़ ये कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, ये यहां। तो अभी इंट्रोड्यूस किया हमने, s क्या है, मोलार सोल्युबिलिटी, s क्या है, मोलार सोल्युबिलिटी, देखो s क्या है, मोलार सोल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। तो हमने एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये जो वैल्यू है, ओके, b रेज़ टू y प्लस ये जो आयंस है उसको हमने ट्रीट किया कि अगर वो x टाइम्स द मोलार सोल्युबिलिटी है, ओके, और ये वाला क्या है, y टाइम्स द मोलार सोल्युबिलिटी है, ओके, y टाइम्स द मोलार सोल्युबिलिटी है, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ Ksp, ओके, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ Ksp, देखो भी इस इक्वेशन में देखो, लुक एट दिस इक्वेशन Ksp की, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, हमने क्या कंसीडर किया है कि b y प्लस आयंस को हमने क्या लिखा है, x into s लिखा हुआ है, बराबर है, x into s लिखा हुआ है, देखो मैं यही पे आपको मैं वो वाले इक्वेशन ला के दिखाता हूं।
So KSP is equal to, so B raised to y, that is by plus ions, तो हमने बोला है x into x raised to power x, बराबर है ना, ऐसे बोला है हम लोगों ने। ओके, और ये जो है a raised to x माइनस को क्या किया हमने y(x), दैट इज ये देखो y, ओके y into x raised to पावर क्या है यहाँ पे y। ओके, तो इसको हम लोग जरा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x raised to पावर x हो जाएगा, बराबर है। ओके, देन x raised to पावर x हो जाएगा, बराबर है। ये y raised to पावर y हो जाएगा। ओके, और x raised to पावर y हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, x raised to x y raised to y। ओके, s raised to क्या हो गया, इनकी एडिशन हो जाएगी। ओके, s raised to x एंड s raised to y, दैट इज s raised to x plus y। तो देखो हमें एक इक्वेशन मिला, किसका इक्वेशन है ये, KSP का, दैट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, मिल गया हमें इक्वेशन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन बाय x raised to x y raised to y, okay, s raised to x plus y। So this is the generalized equation। ये क्या है, generalized equation for what, for solubility product। ओके, और ये देखो ये यहाँ पे आ गया मोलर सोल्युबिलिटी का थोड़ा सा हमें रिलेशन मिल गया। सो नाउ विल सी, टेक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और उस एग्जांपल में हम लोग ये फाइंड आउट करके देखते हैं, उसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, एनी डाउट? हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सो नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का लेते हैं एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज AgBr। ओके, so in the solid it is split into two ions। ओके, स्प्लिट हो जाएगा किसमें, Ag प्लस, बराबर है ना, Ag प्लस आयंस में स्प्लिट हो जाएगा in aqueous form। ओके, and it will split into Br minus in their aqueous form। this देखो एक बार, AgBr is suppose solid, okay, silver bromide जिसको बोलते हैं, and if it is dissolved in aqueous solution it will split into two ions Ag plus and Br minus। okay, तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है वैल्यू ऑफ KSP फॉर दिस। तो देखो इस इक्वेशन में x है क्या कुछ, व्हाट इज x होता है कोएफिशिएंट जो एक आयन के आगे हो, y क्या होता है दूसरा कोएफिशिएंट जो दूसरे आयन के आगे हो, बराबर है क्या यहाँ पे कुछ x वैल्यू। ओके, x इज इक्वल टू क्या है 1 है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, these are the coefficient that will present in front। ओके, तो आगे प्रेजेंट रहेंगे इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, समझ में आया कैसे, इसके आगे क्या है 1 है। ओके, इसके आगे क्या है 1 है, कोएफिशिएंट इसके आगे भी क्या है कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 1। ओके, अभी देखो ये वाली इक्वेशन यूज करो आप। ओके, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 1 एंड सॉल्व दिस, फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, KSP इज इक्वल टू x raised to x y raised to y s raised to x plus 1। देखो निकालेंगे हम लोग, x क्या है 1 raised to 1। ओके, 1 raised to 1, so this is also 1 raised to 1। ओके, and solubility raised to 1 plus 1, तो ये 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा s स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, क्या मिला रिलेशन में, फॉर AgBr, ओके, व्हेन इट split into two ions Ag plus and Br minus, its solubility product it is given by this equation, and when we have put the values of this coefficient we have got the KSP, that is a solubility product। okay, coefficient solubility product we have got as S square। what is S square? okay, S क्या है इसमें, मोलार सोल्युबिलिटी है। ओके, तो मोलार सोल्युबिलिटी स्क्वायर मिला। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
ओके फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यस PbI2 का। ओके रीड आई राइट कर लेते हैं PbI2 in its solid form will split up into its aqueous solution में Pb2 plus ions, okay, Pb2 plus ions in aqueous form and iodine twice, iodine minus in the aqueous form। चलो कैसे लिखते हैं हम लोग इसका CSP कैसे लिखेंगे कि पहले तो x और y की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x and y in this equation? Question to all of you, what is the value of x and y for this equation? आवाज इसलिए नहीं क्लियर आ रहा है बेटा क्योंकि आज गला बैठा है मेरा, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है दैट इज द प्रॉब्लम। ओके आज एक्चुअली गला बैठ गया है, इसलिए थोड़ा सा। ओके ओके यक्स इज इक्वल टू 1 आएगा इसमें और y इज इक्वल टू 2 आएगा। एक्चुअली वो गला बैठ गया इसलिए मैंने आज फैन भी चालू नहीं रखा है। ओके सो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज ओके सो x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन एंड y इज इक्वल टू 2। ओके इनके कोएफिशिएंट देखो आप लोग। ओके Pb2 प्लस के आगे कोई कोएफिशिएंट है क्या? नहीं। क्या है कोएफिशिएंट? 1 है। ओके तो ओनली 1 इज प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 1 आएगी, बराबर है। और ये देखो i के आगे क्या है? 2 प्रेजेंट है, 2 कोएफिशिएंट यानी y क्या हो गया? 2 हो गया। ओके सो इन दिस वे दीज आर द कोएफिशिएंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमें क्या करना होता है? डायरेक्टली उसका जो कोएफिशिएंट है वो वैल्यू या उसके उसमें x एंड y में लिखनी है। ओके so when you will write this x equals to 1 and y is equals to 2, so look at this equation ksp is equals to x raised to x, okay, y raised to y and s raised to x plus y। okay values put up करो इसमें। x क्या है? 1, वो so 1 raised to 1 आ जाएगा। y क्या है? 2, 2 raised to क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बराबर मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन। देन यस रेस टू क्या है? यस क्या है? 1 और y क्या है? 2। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा कि sp इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, बराबर है। यस रेस टू 1 प्लस 2 ये क्या हो गया? 3 हो गया। समझ में आया कि sp क्या है यहाँ पे? ksp दैट इज अ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस केस। किसके लिए? PbI2 के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आया हमारा 4 इंटू एस क्यूब आया। क्या आया? 4 इंटू एस क्यूब आया। ओके और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, सपोज ओके सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। AlOH3, ओके Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके AlOH3 सॉलिड स्टेट में है। ओके व्हेन इट विल स्प्लिट अप Al3 प्लस हो जाएगा, ये Al3 प्लस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, ओके plus this OH minus thrice OH minus, okay, minus in its aqueous solution। Now look at this. What is the value of X in this case? X क्या है? 1 है यहाँ पे, बराबर है। Y क्या है यहाँ पे? 3 है। Y क्या है यहाँ पे? 3 है। So we'll put the value of KSP is equals to X raised to X, Y raised to Y, S raised to X plus 1। उसको सॉल्व करेंगे। X क्या है? 1, 1 raised to 1 multiply that, y क्या है? 3, 3 raised to 3। then yes, so the molar solubility yes is equal yes raised to that is x plus y 1 plus 3। okay देखो इसको सॉल्व करो। okay so 3 का क्यूब that is a 27 yes raised to 4। okay so this is the solubility product, this is the solubility product। okay this is the solubility product। सो व्हाट वी हैव गॉट, हमें ये रिलेशन मिला है, बराबर है। रिलेशन मिला है क्या? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एसपी इज इक्वल टू x रेज़ टू x, these are the coefficient है। ओके और यस क्या है? यस इज द मोलार सोल्युबिलिटी। यस इज व्हाट? मोलार सोल्युबिलिटी। तो ये हमें रिलेशन है। एक्चुअली हेडिंग में लिखते वक्त लिखा है
कि सोलिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन द सोलिबिलिटी एंड क्या है, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक्चुअली वहाँ पे ये होना चाहिए मोलार सोलिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि यस जो लिया है हमने यहाँ पे वो क्या है, मोलार सोलिबिलिटी है। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। क्या लिखना है हमें, के एस पी कैसे आया, दैट इज द जनरल इक्वेशन जो डिराइव किया हमने, देखो नीचे लिखा हुआ है। ओके, जनरलाइज इक्वेशन से हमने वो डिराइव किया है, और उसी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के लिए, आयोनिक इक्वेशंस के लिए आप लोग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ मोलार सोलिबिलिटी, ओके, इन टर्म्स ऑफ मोलार सोलिबिलिटी दैट इज यस के टर्म में आप निकाल सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? दिस इज 27 इंटू यस रेस टू पावर 4। कोई डाउट यहाँ पे? एनी डाउट इन दिस? शैल वी मूव अहेड? हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा एक्चुअली आज आवाज बैठ गया है मेरा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज। So now the next topic is condition of precipitation, यानी precipitate कब फॉर्म होता है। ओके, so that condition of precipitate we will see। ओके, छोटा सा ही टॉपिक है बिल्कुल, condition of precipitation। ओके, so precipitation फॉर्म होता है जब भी वो डिजोल्व नहीं होता है, बराबर है। हम लोगों ने बोला है, ओके, हम लोगों ने क्या बोला है कि स्पैरिंगली सोलूबल। ओके, क्या बोला है हम लोगों ने? सो स्पैरिंगली सोलूबल कंपाउंड्स। ओके, हमने पहले ही कल डिस्कस किया था दैट राइट नाउ व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग इट इज अबाउट द स्पैरिंगली सोलूबल कंपाउंड्स, जो क्या होते हैं, कंप्लीटली सोलूबल नहीं रहते। जो क्या होते हैं, कंप्लीटली सोलूबल नहीं रहते। ओके, सो दैट आर कॉल्ड एज द स्पैरिंगली सोलूबल कंपाउंड। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस, सो स्पैरिंगली सोलूबल जो कंपाउंड रहते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करते हैं। ओके, दे फॉर्म दी प्रेसिपिटेट इनटू देयर सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। ओके, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। ओके, सो we'll see the next topic, condition of precipitation। okay, condition of precipitation, precipitate कब फॉर्म होता है वो देखेंगे हम लोग। okay, condition of precipitation, condition of precipitation। So right now we are talking about the sparingly soluble compound, okay, which are not completely soluble in their solution, जो completely soluble नहीं है। Okay, so what is the condition that at what condition ये precipitate form करता है? So ionic product of an electrolyte, okay, ionic product of an electrolyte is defined in the same way as a solubility product। okay, ionic product एक term है, that is IP। okay, IP is called as the ionic product। okay, that is called as the ionic product। so it is simply ionic product, जो ions जो form हो रहे हैं उनका concentration का product निकालना, that is called as the ionic product of electrolyte। because electrolyte ही हमें क्या देते हैं, ions देते हैं, बराबर है। non electrolyte तो देगा नहीं हमें ions। so the ionic product of the electrolyte is defined in the same way as of the solubility product, but only difference is that ionic product expression contains concentration of ions। okay, it gives concentration of ions। okay, इसके तरफ ध्यान दो properly, it gives just a concentration of ions। ये क्या देता है, ये क्या देता है, concentration of ions देता है at any condition। okay, concentration of ions, okay, concentration of under any condition। okay, under any condition, under any condition। so this is about, ओके, तो ये जैसे हमने लिखा ना, ओके, आयनिक प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हो रहा है, ओके, AG सपोज
AgBr बराबर, अभी लिखा था ना हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल AgBr का। ओके, तो ये क्या क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज फॉर्मिंग Ag प्लस बराबर है एंड Br माइनस। तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आयोनिक प्रोडक्ट विल बी व्हाट, Ag प्लस इस इनके जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं उसका कंसंट्रेशन बराबर है, concentration of ions under any condition, प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड Br का जो कंसंट्रेशन है बस उनका जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट निकालना एट एनी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक प्रोडक्ट बराबर है, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक प्रोडक्ट। बट व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने जब निकाला था देखो यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बराबर ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए ना। सो द whereas expression of KSP contains only equilibrium concentration. Okay, whenever we write down, whenever we write KSP, okay, solubility product, जब भी हम लोग बात करते हैं solubility product की, जब हम लोग बात करते हैं, okay, solubility product, so look at, just think about, remember about the yesterday's lecture, okay, जब हमने solubility product निकाला था तब हमने क्या लिखा था, at equilibrium condition and for equilibrium constant बराबर है ना, for equilibrium constant, अगर equilibrium constant है, okay, so that time हम लोग निकालते हैं वो solubility product, so solubility product that contains only equilibrium concentration, it contains equilibrium concentration। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है आयोनिक प्रोडक्ट में और केएसपी में। ओके, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अंडर एनी कंडीशन निकाल देते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बट दिस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इट इज टेकन एट इक्विलिब्रियम concentration। ओके, एट इक्विलिब्रियम concentration it is taken। So if the value, okay, three conditions are defined here, if IP is equals to, if IP is equals to KSP, अगर IP की वैल्यू दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर solubility product, okay, if they are same, okay, ionic product and solubility product, if their value is same, that solution is called as, so the solution is saturated, okay, such solution is called as saturated solution, solution is saturated, okay. And you know what is the meaning of saturated solution, saturated solutions क्या होता है, saturated solution means, okay, जिसमें जो भी सोल्यूट पार्टिकल ऐड किया हुआ है, ओके, उसमें सैचुरेशन कंडीशन कब आती है, whenever there is we cannot add more solute into it, बराबर है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ओवर सैचुरेटेड, ओके, या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा हुआ है। ओके, so when the ionic product is equals to the solubility product, that time we say that the solution is saturated, okay. Then second condition is value of in that ionic product is greater than KSP. If the value of ionic product is greater than the solubility product, then the solution is called as the super saturated. Okay, so solution क्या हो जाता है इस condition में? The solution is super saturated. What is the meaning of super saturated? उसमें सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया है, ओके, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है, ओके, एंड ड्यू टू विच द कंपाउंड सैचुरेटेड एंड हेंस प्रेसिपिटेशन ऑफ कंपाउंड विल ऑकर। तो ये जब भी ये होता है कंडीशन दैट इज सुपर सैचुरेटेड, देन दैट टाइम प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, ओके, जो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट when IP, ionic product, is greater than the solubility product, that time we say that the solution will form a precipitation. So we write down here precipitation of compound will occur, precipitation will occur, precipitation of compound will occur, compound occur. So understood? So when the ionic product value, okay, ionic product value is greater than the solubility product, that times the condition of precipitation has will occur. Third condition, when
the ionic product is less than solubility product, that time solution is called as unsaturated. That time solution is called as unsaturated. So solution is unsaturated at this condition. It is not saturated. The quantity of solute which is present in a solution is in less amount. Okay, and precipitation will not occur. Okay, precipitation will not occur. Precipitation, precipitation will not occur. So I hope you have understood what is the meaning of this. Okay, IP is what? That is ionic product. Ionic product is calculated at any condition. Okay, it is just a product of its concentration of ions. Okay, तो जो दो ions form हो रहे हैं उनका concentration का product लिया गया है बस. Okay, that is called as ionic product. But what is the solubility product? That is taken at the equilibrium concentration. जब भी equilibrium होता है, equilibrium constant होता है, उसी टाइम पे ये solubility product हम लोग निकालते हैं. Okay, and here three conditions we have written. Okay, here three conditions we have written at the time when IP in ionic power product is equals to the solubility product. Okay, that time solution क्या है? Saturated है. Saturated solution means what? वहाँ पे जो क्वांटिटी है सोल्यूट की अभी वो प्रॉपर हो गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है. अगर उसके बाद अगर आप ज्यादा सोल्यूट डालोगे तो वो क्या होगा? डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस थ्री टर्म्स: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा हुआ है. ओके, so these are the conditions. So based on this, we solve problem number 3.11. All of you look at the problem number 3.11. Look at the problem number 3.11. A solution is prepared. Okay, a solution is prepared by mixing equal volume of 0.1 molarity MgCl2, okay, magnesium chloride, and 0.3 molarity Na2C2 and O4 at 293 Kelvin. Would MgC2O4 precipitate out? यानी क्या क्वेश्चन है उनका कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा क्या ये सॉल्यूशन. ओके, दैट इज Mg C2O4. द वैल्यू ऑफ solubility product of MgC2O4 at 293 Kelvin they have provided. Okay, so based on this we'll see whether it will form or not. Okay, so solution is prepared, okay, by taking two equal volumes. So this word is very important in this problem. Okay, problem number 3.11. So in problem number 3.11, a solution is prepared by what? Mixing equal volumes. So this is very important. Whenever mixing takes place, mixing equal volume. Okay. Whenever mixture or whenever mixing that takes place by taking equal volume of two different particles to different substance, that time we say that when solution is prepared by mixing equal volume, volume gets double. बराबर है ना? अगर दोनों का भी हमने substance first and substance second का दोनों का भी equal volume ले लिया तो volume क्या हो गया? डबल हो गया ना. Okay, so that is the thing that you have to understand for this problem 3.11. Okay, mixing equal volume. So solution is prepared by mixing equal volume, okay, of 0.1 molarity. Okay, तो ये देखो 0.1 जो molarity है MgCl2 से, okay, हमारा जो फाइनल जो कंपाउंड है वो क्या है? Mg, मैं वो लिखता हूँ MgC2O4. तो ये MgC2O4 ये बना हुआ है, किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है 0.1 मोलारिटी ऑफ MgCl2. किससे बना हुआ है? 0.1 मोलारिटी कंसंट्रेशन से, ओके, ये बना हुआ है. तो देखो ये वाला हमारा फाइनल फाइनल कंपाउंड है, ओके, Mg. तो देखो इसमें कितना है? 0.1 मोलारिटी है, ओके, Mg की क्वांटिटी. एंड 0.3 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.3 मोलारिटी से ये क्या बना है? Na2C2O4. ओके, देख सकते हो आप
ये जो है C2O4 ये यहाँ से लिया गया है, बराबर है, और जो मैग्नीशियम है यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ वो यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा, whenever the solution is prepared from two different substance and दे आर ऑफ सेम क्वांटिटी, जब भी वो सेम क्वांटिटी के होंगे, इक्वल वॉल्यूम होंगे, दैट टाइम वी कैन राइट डाउन, देखो यहाँ पे कैसे स्प्लिट हो जाएगा ये, Mg2 प्लस में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, सो इट इज Mg2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, Mg वैल्यू से निकालेंगे, कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 0.1 and 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मोलैरिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 0.05, 0.05 मोलैरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दैट्स लीटर, मोल्स अपॉन लीटर। तो ये हो गया Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हो गया Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ C2O4, C2O4 2 माइनस, ओके 2 माइनस, इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ये देखो इससे लिया हुआ है, कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल इक्वल वॉल्यूम है कॉन्सेंट्रेशन। ओके, so it is 0.15, that is mole per liter, moles per liter, this is the concentration। okay, तो देखो इसमें से हाफ कंसंट्रेशन है यहाँ पे, इसमें से हाफ कंसंट्रेशन है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से by mixing equal volume, by mixing equal volume। ओके, इक्वल वॉल्यूम दिया है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा mg में। ओके, फ्रॉम mgCl टू हाफ कंसंट्रेशन यहाँ पे चला जाएगा, Na2CO4 में से हाफ कंसंट्रेशन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये देखो Mg2 प्लस और इसका हम लोगों ने कंसंट्रेशन लिख दिया। नाउ these ions would react to form sparingly soluble salt। ओके, sparingly soluble salt बन रहा है, ये कौन सा सॉल्ट है MgC2O4 in accordance with the reaction। so इसको हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, MgC2O4 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 सॉल्ट है ये वाला। ओके, इसलिए क्या है सॉल्ट है, ये कैसे स्प्लिट हो रहा है, इट इज splitting into Mg2 plus ions in the aqueous form and C2 C2 कहा गया C2O4 C2O4 2 minus 2 minus in their aqueous form। okay, so this is what the equilibrium condition that we have written। okay, so ionic product in a solution is given by, क्या है ionic product, आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हमने डिस्कस किया। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, इट्स सिंपली द प्रोडक्ट, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। Mg2 प्लस का कितना कंसंट्रेशन है और C2O4 2 माइनस का कितना कंसंट्रेशन है, उनका डायरेक्टली प्रोडक्ट लेना ही क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है। so I'm going to write down this, is what Mg2 plus concentration and C2O4 2 minus इसका concentration, कितना है कंसंट्रेशन Mg2 प्लस का, तो देखो हमने फाइंड आउट किया है, इट इज द हाफ ऑफ दैट कंप्लीट कंपाउंड, वो कितना है 0.05, तो 0.05, ओके 0.05, तो डायरेक्टली इसको इसी में लिखा तो चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो निकालना है हमें, तो C2O4 को माइनस का 0.15। ओके, तो देखो Ip कितना आया, आयनिक प्रोडक्ट कितना आया, आयनिक प्रोडक्ट। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, डायरेक्टली मैं फाइनल वैल्यू लिखता हूं। ओके, आप लोग सॉल्व करके देखो, 7.5 into 10 raised to minus 3, 7.5 into 10 raised to minus 3। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो सिंपली जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके Mg2 प्लस के और C2O4 2 माइनस, इनकी दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, ओके जब इसको डिसॉल्व किया है एक्वियस सॉल्यूशन में, ओके तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये कंसंट्रेशन फॉर्म कर रहा है, उन दोनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है सिर्फ, वो क्या होता है आईपी होता है। ओके, एंड लुक एट दिस, दे हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ KSP, उन्होंने KSP की वैल्यू प्रोवाइड की है, कौन सी वैल्यू है KSP की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP, KSP वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है। ओके, the for MgC2O4 is at 290 Kelvin is 8.56 into 10 raised to minus 3।
So look at these two values, 8.56 into 10 raised to minus 5 and 7.5 into 10 raised to, okay, तो क्या है इसमें, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, आप लोग देखो, आईपी दिस वैल्यू, आईपी की ये वाली वैल्यू है आयनिक प्रोडक्ट की, और केएसपी की ये वाली वैल्यू है, ये देखो 10 रेज़ टू माइनस 5 में है, 10 रेज़ टू माइनस 3 में है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, आईपी की वैल्यू क्या है इसमें ज्यादा है, बराबर है ना, आईपी की वैल्यू क्या है, देखो आईपी की वैल्यू ज्यादा है, 10 रेज़ टू माइनस 5 में बहुत कम है वैल्यू, ओके, सो हियर वी कैन राइट डाउन दैट कि आईपी वैल्यू is greater than KSP. So IP value whenever it is greater than KSP क्या होता है, solution क्या होता है, solution is super saturated and hence the precipitation of the compound will takes place, बराबर है ना, yes, it is super saturated, solution क्या हो जाता है, solution is super saturated, okay, solution is super saturated and whenever the solution will take place super saturated वहां पे precipitate form होगा, so PPT that is precipitate will form, precipitate will form, समझ में आया कैसे निकालते हैं, हमें सिर्फ मोस्टली मैक्सिमम केसेस में हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है किसकी, आईपी की, केएसपी की तो दी जाती है वैल्यू, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे, एनी डाउट।